जय भीम साथियों, नमो बुधाय, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। क्या आज के लोकतंत्र जनता के बात सुनती है? तो सवाल है कि नहीं। क्या आज के लोकतंत्र का परिभाषा कहीं जमीनी सतह पर खो गया है? आज के लोकतंत्र किसके हाथों में है? क्या आज के जनता की आवाज सुनी जाती है? तो सवाल है कि नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोकतंत्र एक शांतिपूर्ण प्रगतिशील परिवर्तन है जो जनता को साथ लेकर के चलती है। क्या आज के नेता लोकतंत्र में बैठे लोग जनता को साथ लेकर के चलते हैं? तो सवाल है कि नहीं। क्या आज लोकतंत्र एक चुनावी प्रक्रिया बन करके रह गया है? हर 5 सालों में वोट डालना है? तो सवाल है कि नहीं। तो फिर लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक सत्ता में अच्छे लोग नहीं आते। समाज में परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक सत्ता में लोकतंत्र में अच्छे लोग नहीं होंगे। आपको विश्वास नहीं होगा मेरे बातों से, तो पहले ये वीडियो देखिए। Democracy is going to work in India. No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? The real, I mean, a paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers, and so on and so on. Well, but elections are very important. No. Elections are important provided they produce really good men. But aren't they important because they allow you to change a government? I mean, it's better to change peaceably than to bloodshed. Yes, but who has got the idea, you see, that voting means change of government? Nobody has. People have no consciousness. And our electoral system, you see, is of a sort which never allows a man to choose the candidate. Now, for instance, the Congress went and said, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock. Whether it was a donkey who represented the Bullock, you see, or a very educated man who represented the Bullock. He simply voted for the Bullock. Well, but that's common to many party systems. But what you mean by, in a formal sense, you mean that in a fundamental sense, in democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. What do you mean that it's based on equality, inequality, or it is based on inequality? And therefore, unless you can get rid of the caste system, you don't think the social structure got to be altered. I'm quite prepared to say, well, it will take some time for the social structure to be altered if you want to do it in a peaceful way. Yes, you see. But then somebody must be making the effort to change the social system. But your Prime Minister and others make a lot of speeches against the caste system. These endless speeches, you know. You see, when Carlyle was presented with a set of volumes by Spencer, yes, you see, he said, oh, this endless speaking acts in Christendom. Well, it's the same sort of, one is sick of speeches. We like to have action. Well, what action do you want? Some program, you see. Some machinery by which the thing could be altered. Some action. आज का लोकतंत्र में क्या हो रहा है? आज के जनता के आवाजों को सुनी जाती है? आज सत्ता से सवाल पूछने वाले जेल में क्यों हैं? आज सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं? युवा रोजगार क्यों है? महिलाएं असुरक्षित क्यों है? आज तेल, पेट्रोल और डीजल के भाव और एलपीजी गैस पर इतना महंगाई क्यों है? आज पेपर लीक रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? आज फिलहाल ही महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। कांग्रेस पार्टी के नेता विजय दीपके अभी धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं, फिर भी एक पेपर लीक हो गया। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? जितने भी भारत में गलत कामें हो रहे हैं, जितने भी लोकतंत्र में गलत काम हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो मन में आता है वो कर देते हैं, जो इनका मन कहता है कर देते हैं, जो इनके लोग कहते हैं कर देते हैं। आज सत्ता में गलत लोग बैठे हैं, इसका जिम्मेदार है नहीं कि वही लोग हैं जो गलत कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार सत्ता नहीं है,
इसका जिम्मेदार जनता है, क्योंकि जनता ही ने उसको चुना है। जनता जब तक गलत लोगों के साथ देगी, जनता जब तक चुनावी प्रक्रिया में बंद कर रहेगी, जब तक सत्ता से सवाल नहीं पूछेगी, अपने हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेगी, जब तक अपने बल पर कोई भी सवाल नहीं करेगी, तब तक समाज में गलत लोग गलत चीज़ों का समर्थन और इसका गलत फायदा उठाएंगे। इसका गलत होने का कारण ये नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग गलत कर रहे हैं। गलत करने के पीछे आप जनता हो, गलत करने के पीछे जनता की हाथ है। यदि जनता चाहेगी तो 1 मिनट में उससे इस्तीफा लिवा सकती है, लेकिन जनता चाहेगी तो 100 साल तक राज्य करता रहेगा। नेता में सुधार तब आएगी जब जनता में सुधार आएगी। जब तक जनता ही नहीं सुधरेगी तो ये नेता क्या सुधरेंगे। एक नेता आज 5 साल तक गलत किया, फिर अगले साल तुम ला करके इसे खड़ा कर दोगे, तो क्या ये अगले 10 सालों में अच्छा काम करेगा? तो सवाल है कि नहीं। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आज के लोकतंत्र क्या है? आज के लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया बन करके रह गया है, एक छोटे हिस्सों में सिमट कर रह गया है। आजकल के लोकतंत्र 5 साल में वोट डालना नहीं है। जब तक आप सत्ता को, लोकतंत्र को अमल में नहीं लाएंगे तो ये गलत लोग गलत ही फायदा उठाएंगे। आपके बच्चे परदेशों में जाकर के नौकरियों के लिए धक्के खाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए गम उठाते हैं। इस पर विचार कौन करेगा? ये सत्ता में बैठे लोग। तो सवाल है कि नहीं, तो फिर कौन करेगा? आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते तो ये सत्ता में बैठे लोग क्या आपके भविष्य के बारे में, आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे? तो सवाल है कि नहीं। क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपने ऐसे लोगों को ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे लोग, जब तक गलत लोग सत्ता में रहेंगे तब तक गलत ही काम होता रहेगा। इस बात को आँख खोलने की जरूरत है। आपको सोचने समझने की जरूरत है, ये ना कि आप 5 साल के बाद फिर जाओ उसी पर वोट दे करके आ जाओ। नहीं, मत आपका अधिकार है, बोलने का आपका अधिकार है। आप बोलो। आपका आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, 16, 17 और आर्टिकल 51 आपका अधिकार दे रहा है कि आप किसी के प्रति सवाल उठा सको। आप जब तक बोलना नहीं सीखोगे, आप सत्ता से सवाल नहीं पूछोगे, सत्ता गलत ही काम करती रहेगी। इसके लिए जिम्मेदार है तो वो है जनता। जनता चाहेगी तो सत्ता को उखाड़ कर फेंक भी सकती है और रख भी सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।